हाँ वैसे पढ़ने वाला है, आ सकता है। अरे बेंजामिन सिलेबस में ही नहीं है। Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. हेलो मैम। हाय अक्षत, कैसे आप लोग, कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपकी? आप में से भी किसी के रीअपियर्स के एग्जाम हैं क्या? नो मैम, मेरा तो नहीं है मैम, नोप्स। Okay, there were some other people, some other section people, they were telling me that they have got the exams from 10th of October. Okay, so we were studying leverage and we have to cover two types of leverage today, financial and operating. I just started the meaning of leverage with you guys. That what exactly is leverage? Leverage is anything, any mean through which, or any force through which we are able to bring the better results, better output, or maybe better level of production in our business, whatever business kind of business we are doing. In better results means it can be a more qualitative product, it can be more qualitative service, or it can be more quantitative service or production of any product. So anything which we do, which any process or any mean which we do in our production process, or which we apply during our production process, in order to bring the better results than the normal results, basically is leverage. And ये एक तरह से दो types की leverage है, operating and financial. और इन दोनों को combine अगर हम कर देते हैं leverage costs को, तो वो कंबाइन लिवरेज कॉस्ट हो जाती है. So leverage can increase or magnify the returns to common stockholders, and it also increases the risk. कॉमन स्टेक होल्डर्स कौन हो गए? इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो जिनको रिटर्न्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. इफ द प्रॉफिट्स आर मैग्निफाइड और इंक्रीज्ड through leverage, then obviously the returns on their investments is increased, but it also increases the risk. So we, in this leverage and the types of leverage, we will also study how to calculate. There is again a formula of calculating the degree of operating leverage and the degree of financial leverage. So degree in the use of leverage depends on the management's attitude towards the risk and the nature of its business, among others. Risk is also different of different kinds for different kinds of business. Like if the nature of the business is something which is into production or something like that, then the risk there involved would be different. But if the nature of business is of producing a service, अशोक म्यूट कर दीजिए बेटा. मैं नाम नहीं देगा. So the risks is also depending upon, risks are also depending upon the nature of its business, and the degree in the use of leverage is also depending upon that risk. So management has got the complete control over the business
and it also helps in taking the decision. It actually has the control of taking the decisions also, and those decisions and everything are also depending upon what the output of a business would be in future, whether it will be fruitful, it will not be. So whenever there is a loss in the business, or in any company faces any loss, we always would say that yes, the management was not good. Whenever things are not going the right in the right place, we always blame the management for that. The management is not capable enough, or the management is not performing its task the way it should. इस तरह से होता है सो ये एक पर्टिकुलर साइड है, आप इसको प्लीज़ देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी इसके बारे में, और आपको अगर ये समझ आ गया तो मोर और लेस आप इस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में इलेबोरेट करके एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप आई मीन यू कैन जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अभी हम एक नॉर्मल सी सिचुएशन लेके चल रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशन बहुत ही बेसिक सा एक सिचुएशन कि आप समझिए दैट यू आर द फाइनेंस मैनेजर इन अ बिजनेस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्लाइड इन दैट वे दैट व्हाट इज सेल्स। सेल्स बेसिकली कि हमारा इतना पर्टिकुलर अमाउंट का एक ये सेल हुआ, ये एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट समझ लीजिए आप। किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है वो इस फॉर्म में होगी। तो इनमें से जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ ऑपरेटिंग लिवरेज से होंगी, कुछ जहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज़ है जहाँ पर हम फाइनेंशियल लिवरेज अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से होगा स्टार्ट। तो ये सेल्स से जो स्टार्ट हो रहा है, ये पर्टिकुलर एक इनकम स्टेटमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। हम समझते हैं दैट वी आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमको कुछ एक रेवेन्यू जनरेट हुआ। हमने कुछ प्रोडक्शन किया था, प्रोडक्शन करके हमने एक प्रोडक्ट को बेचा टू सर्टेन एक्सटेंट, और हमें उस प्रोडक्ट को बेचने से एक सेल, एक रेवेन्यू पैसा आ गया बेचने से, ठीक है। हमने शायद कुछ एक गुड नंबर ऑफ क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया कोई प्रोडक्ट का, या सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी जिससे भी हम अपना पैसा कमा रहे हैं बिजनेस में, जो भी हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, उससे हमें कुछ एक अमाउंट सेल्स का आया। फॉर एग्जाम्पल सेल्स का अमाउंट हमें मिल गया 10 करोड़। तो ये सेल्स का जो अमाउंट 10 करोड़ हुआ, हम उसको आगे लिख भी सकते हैं, सेल्स इज इक्वल टू 10 करोड़ ऑफ दिस बिजनेस, एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी, व्हाटएवर कंपनी। उसमें से अब हम जब उसमें से हमें लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट कंपनी लगाती है जब भी कभी कुछ प्रोड्यूस कर रही है। हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर हम कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसको आगे बेच रहे हैं, तो दो चीज़ों का मेन काम है जो फोकस करती है कोई भी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो फोकस करता है, वो कॉस्ट पे दो तरह की कॉस्ट होंगी। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी हुई? वो सब कॉस्ट जो हमने पहले पढ़ा है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है लॉन्ग टर्म में ही चेंज की जा सकती हैं, शॉर्ट टर्म में तो चेंज नहीं होती है फिक्स्ड कॉस्ट, और वो फिक्स्ड रहती हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते ना कम कर सकते। ये वाली कॉस्ट कौन सी होगी? जो कॉस्ट हमने लगा दी कोई लैंड परचेज करने में, या कोई मशीनरी बहुत बड़ी परचेज करने में, या हम जो ऑफिस एरिया है हमारा, या फैक्ट्री एरिया जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, उसको उसके लिए हम रेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होगी फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि इनको हम जल्दी से ना तो ऑफिस चेंज करते हैं, ना जल्दी से कोई लैंड परचेज करते हैं, ना ही ऐसा होता है कि हम रूटीन में हर मंथ कोई बड़ी बड़ी मशीनरीज खरीद रहे हैं। एक बार इंस्टॉलेशन हो जाता है बहुत बड़ी मशीनरीज का, और वो सालों साल चलता है, उनका बस मेंटेनेंस होता रहता है और सालों साल चलती हैं, वो डिप्रिशिएट होती हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं रहा। अब ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है? अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग से टॉयज और एनीथिंग जो भी हमारा फ्रेंच प्रोडक्ट है, उसको प्रोड्यूस करने के से रिलेटेड हमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो हमारा बेसिकली रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल टॉयज़ के लिए होगा प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक के टॉयज़ बना रहे हैं, या अगर हम टॉयज़ के लिए कोई और एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, या किसी और हम एलिमेंट में सोचते हैं कि हम यूज़ करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, मीटिंग में हूँ अभी, कॉल बैक करती हूँ मैं, ठीक है? थैंक 40 सो आई एम सॉरी। सो वेयर वर वी? ओके, वेरिएबल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल हमारा क्या हुआ? अगर हम जिस भी एलिमेंट का हम प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं, वो हमारा बेसिकली रॉ मटेरियल हो गया। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है जैसे रॉ मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट हमारी चेंज हो सकती है, चेंज यानी कि ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी, कम हो सकती है वेरिएबल कॉस्ट अगर हमारी प्रोडक्शन कम होगी। ऑब्वियसली अगर हम टॉयज़ की क्वांटिटी 1 लाख रुपया नहीं, सॉरी 1 लाख अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हमें जो सपोज जो हमारा रॉ मटेरियल प्लास्टिक हमने एज्यूम करा, या हमने
आयरन अगर हम ले रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल आयरन का है कुछ है, तो वो क्वांटिटी प्रोडक्शन के हिसाब से कम ज़्यादा होगी। ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट, या ज़्यादा रॉ मटेरियल कम प्रोडक्शन कम वेरिएबल कॉस्ट, या कम रॉ मटेरियल हमको लगेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, चाहे हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही ज़्यादा प्रोडक्शन पे हमको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाता है। हम बहुत बार जैसे कुछ चीज़ ज़्यादा ख़रीदते हैं तो हमको वो सस्ती मिल जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब ज़्यादा हम कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्योंकि जो वो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड थी, वो हमारी स्प्लिट हो जाती है पर यूनिट्स में। ज़्यादा यूनिट्स बन जाती हैं तो वो पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम आ जाती है। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी समझिए, सपोज आ रही है, हमें लैंड स्टैब्लिश करा, रेंट हम दे रहे हैं। ऑब्वियसली अब पूरा ऑफिस अगर ओपन हो रहा है और हम उस पूरे ऑफिस का लैंड का रेंट दे रहे हैं, तो चाहे एक उसमें हम यूनिट प्रोड्यूस कर लें या 1000 या 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर लें, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, रेंट थोड़ी कम हो जाएगा जो पूरा हमने लैंड ले रखा है। तो वो वाली ऐसी कॉस्ट होती है। अगर हम ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट स्प्लिट कर देंगे। सपोज फिक्स कॉस्ट इज 1 लाख और यूनिट्स भी हमने 1 लाख प्रोड्यूस करी हैं, तो फिक्स कॉस्ट 1 लाख यूनिट्स की 1 रुपया ही आई पर यूनिट। लेकिन अगर हमने वही यूनिट 1 लाख की जगह से 50,000 प्रोड्यूस करा या 10,000 प्रोड्यूस करा, तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट तो ज़्यादा हो गई ना। अगर हम सिर्फ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट की जो होगी 1 यूनिट की, वो 10 रुपये हो गई। वही अगर हम 1 लाख प्रोड्यूस करें तो 1 रुपया होगी। दैट इज़ वाई more and more production should be done if the fixed cost is high, क्योंकि हम उसको चेंज तो नहीं कर पाएंगे शॉर्ट टर्म में। अगर चेंज होगा भी तो लॉन्ग टर्म में ही होगा। तो अब सेल्स हमने सबसे ऊपर देखा, सेल्स में से अब हम क्या लेस कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती है टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन यूनिट्स, जो कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया। उसकी कॉस्ट को हमने अगर लेस कर दिया तो हमारा क्या आया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो अमाउंट लेस किया हमने, 10 लाख सेल थी या 10 करोड़ सेल हमने जो भी अज्यूम करा है, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट का कुछ अमाउंट लेस करेंगे जो हमारी कॉस्ट लगी है उसमें से। क्योंकि आप समझिए कि एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी सेल्स का पैसा हमारा आया, क्या हम उसको टोटल प्रॉफिट में डाल देंगे? वो गलत होगा टोटल प्रॉफिट में डालना, क्योंकि अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसको बनाया भी तो है, उसकी बहुत सारी कॉस्ट है। ये वो सारी चीज़ें हम लेस करेंगे और लास्ट में जो बचेगा वो ईपीएस होगा। तो अभी हमने पहला करा वेरिएबल कॉस्ट लेस, तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिला। अब हम इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड रही, चाहे हम उसको कम प्रोड्यूस करते हैं या ज़्यादा प्रोड्यूस करते, तो भी ये उतनी ही रहती। तो हमने जो भी जितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस किया टोटल, और हमें जितना भी सेल करने से आया पैसा, उसमें से कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अब हम फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस कर देंगे। तो हमें जो अब मिला वो हमारी अर्निंग्स हो गई बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी कि ये सारी अर्निंग्स जो हमने, ये हमारी बेसिकली अर्निंग्स तो हो गई, यानी कि प्रॉफिट हमने इतना हुआ। लेकिन अब हमें इसमें से कुछ टैक्सेस भी देने होंगे गवर्नमेंट को। जो कुछ हमारी जो भी अर्निंग होती है या इनकम होती है, उस पर हर कोई टैक्स देता है ना, एज पर दी गवर्नमेंट रूल। हम एज एन एम्प्लॉई हम भी देते हैं इनकम टैक्स, एज द बिजनेस भी देता है, जीएसटी लगता है उस पर, या जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके हिसाब से। तो वो टैक्सेस भी हमको गवर्नमेंट को तो देने हैं। तो एक्चुअली में तो हमारी इनकम नहीं है, बट वी आर अज्यूमिंग इट ईबीआईटी। हम इसको एबिट बोल देते हैं, ईबीआईटी बोल देते हैं, विच इज़ आर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से अभी हमें इंटरेस्ट भी पे करना है और टैक्सेस भी पे करने हैं। उसके बाद जो बचेगा वो एक्चुअल हमारी अर्निंग्स होंगी। तो अभी हम ईबीआईटी में से अब हम इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट कौन सा होगा, जहाँ जो हमने अपनी कैपिटल रेज करी हुई है, मे बी डिबेंचर होल्डर्स को हमने इंटरेस्ट देना है, या हमने इंटरेस्ट और कहीं से लोन लिया है तो उसको देना है। जो भी हमारी कैपिटल है उसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है हमें वो देना है, क्योंकि हम इंटरेस्ट सबसे पहले देते हैं। या इवन डिविडेंड भी है, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड जो देते हैं वो भी प्रेफरेंशियल राइट्स अपने एंजॉय करते हैं, तो उनको भी हमने ये दे दिया। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस कर दिया। अब हमें हमारे पास क्या बच गया, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस।
यानी कि अब इसमें से हमें अर्निंग्स जो हैं ये बिफोर टैक्सेस हैं, इसमें से हमने जो ईबीआईटी है यहाँ तक की जो हमारी अभी हुई हैं ट्रांजैक्शंस, इन ट्रांजैक्शंस में से कुछ यहाँ पर हम कुछ भी अगर कर रहे हैं लिवरेज से रिलेटेड तो वो ऑपरेटिंग लिवरेज में आएगा। और जहाँ पर इंटरेस्ट की बात आ जाती है, जहाँ पर भी फाइनेंस जो भी हमारी कैपिटल है, कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी बात आ रही है, वहाँ से लेकर एंड तक ईपीएस इज ऑल्सो आर कैपिटल डिविडेंड। तो ये सारी एक्टिविटीज फाइनेंशियल लिवरेज में हम कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट के बाद से। एबिट तक हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज रहेगा। दो टाइप्स ऑफ लिवरेज जो हमने करा, टोटल का कंबाइन लिवरेज कर देंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज प्लस फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू कंबाइन लिवरेज ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से ईबीटी में से अब टैक्सेस लेस करेंगे तो ईच बच जाएगा हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, विच एग्जैक्टली आर द अर्निंग्स नाउ लेफ्ट फॉर द शेयर होल्डर्स। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको अब हम डिविडेंड जो देंगे वो इसमें से देंगे, ये अर्निंग्स में से हम डिविडेंड देंगे। सबको हमने सब कुछ दे दिया, जिसका जो बचता था गवर्नमेंट को देना था गवर्नमेंट को दे दिया। अपनी सारी कॉस्ट निकाली जो हमारी लगी थी, जहाँ पर भी जिस भी फॉर्म में लगी थी, चाहे वो वेरिएबल थी फिक्स थी, अपने सारे हमने कैपिटल जो भी था हमारा उस पर भी इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। हमने सब एम्प्लॉइज़ को सैलरीज एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी पेड। वेरिएबल कॉस्ट होती है सैलरीज जो है वो आप पूछोगे हमने तो लिया ही नहीं, वो सब वेरिएबल कॉस्ट में आता है। हम इसको भी डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे अगर हमारे सिलेबस में होगा कुछ तो, कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आता है। उस मतलब जो भी खर्चे एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं वो हमने ईट तक सारे पे कर दिए, कंसिडर कर दिए, चाहे वो एम्प्लॉयर की सैलरी हो, चाहे वो एम्प्लॉई की सैलरी हो, डायरेक्टर्स को कुछ रेम्यूनरेशन जा रहा हो, सब कुछ जो है वो हमने वेरिएबल कॉस्ट में लेकर कंसिडर कर लिया, फिक्स कॉस्ट में लेकर फिक्स कॉस्ट दे दिया। ईट जो हमारा बच गया, अब ये अर्निंग्स हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच गए। कितने शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास टोटल? सपोज हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस मिला, सेल्स हमारे पास 10 करोड़ थी, सब कुछ मिला के अब हमारे पास 2 करोड़ बच गया। सपोज ईच जो बचा अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, टैक्स वगैरह पे करने के बाद भी वो 2 करोड़ बचा। तो 2 करोड़ बचा, या कोई भी एक अमाउंट छोटा भी ले लीजिए आप कैलकुलेशन के लिए कि इतना अमाउंट हमारा ईट बचा है, और टोटल हमारे पास शेयर्स हैं सपोज 2 lakhs or maybe 20 lakhs, whatever number of shares we have. So 2 crores divided by that number of shares will give you अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे उतनी अर्निंग आ जाएगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सबको बराबर, जितने भी शेयर्स हमने दिए हुए हैं मार्केट में एज एन इक्विटी शेयर्स, वो टोटल अमाउंट जो हमारा ईच है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है, वो हम नंबर ऑफ शेयर्स हमने जितने भी दिए हुए हैं इक्विटी शेयर्स उनसे डिवाइड कर देंगे, दैट बिकम्स आवर ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। अब देखेंगे अपने सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। समहाउ वो टॉपिक इससे भी रिलेटेड होगा कि हम ईबीआईटी और ईपीएस के को एनालाइज करेंगे कैसे। ईबीआईटी हमने पढ़ लिया क्या होता है, ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर, कि हमने अर्निंग्स पर शेयर का मतलब डिविडेंड पर शेयर भी होता है कि हमने इक्विटी शेयर्स पर इस साल में इतना डिविडेंड पर शेयर दिया। ठीक है, सो लिवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन, ये सारी एक्टिविटीज जो भी हैं वो ऑपरेटिंग में आ गई, एक्विजिशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। नाउ लिवरेज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर है उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, ईपीएस हो गया, ईट हो गया, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, ये सारी चीजें फाइनेंशियल लिवरेजेस में आ जाएंगी हमारी। पहले हम ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ते हैं। यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी होगी? जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है उनका यूज, या वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज, ये सब कुछ हम ऑपरेटिंग लिवरेज के अंडर लेंगे। जब भी कभी हमें अगर कुछ कोई एक एक्टिविटी है या कोई हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो वी विल ऑलवेज कंसीडर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अ फर्म विद रिलेटिवली हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल एक्सपीरियंस मोर वेरिएबल ऑपरेटिंग इनकम इफ सेल्स चेंज। यानी कि जो भी फर्म जिसका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, वो क्या एक्सपीरियंस करेगी? मोर वेरिएबल ऑपरेटिंग इनकम। वेरिएबल ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा क्यों करेगी वो एक्सपीरियंस? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई है, उसको तो हम हिला नहीं सक रहे हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अप नहीं कर पा रहे हैं, डाउन अब तो खैर क्या ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अप है, हाई है, लेकिन हम उसको तो कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी वेरिएबल ऑपरेटिंग इनकम में को ही कम करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमारी सेल्स के थ्रू हमारा प्रॉफिट हो। जैसे कि
एक छोटा सा बहुत नॉर्मल एग्जांपल हम लेते हैं कि हम कंपनी एक स्टार्ट कर दिया हमने, फॉर एग्जांपल हमने कंपनी रनिंग मोड में है, प्रोडक्शन हो रहा है, एस्टैब्लिश्ड है, फैक्ट्रीज भी एस्टैब्लिश्ड है, हमारा एक ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफिस भी एस्टैब्लिश्ड है जहाँ पर स्टाफ बैठता है, चाहे वो 5 लोग बैठते हैं, चाहे वो 50 लोग बैठते हैं, जो भी है, और वो लोग यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड है, सेल्स डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड है, एडमिन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड है, एचआर डिपार्टमेंट, ये पूरा प्रॉपर स्टाफ का ऑफिस भी स्टैब्लिश है, सब कुछ है। हमने इस ऑफिस को लेने के लिए, स्टाफ के ऑफिस को लेने के लिए कुछ लैंड लेके रखी हुई है, ऑफिस का किराया जाता है, वो एक चीज़ है जो हमारी फिक्स कॉस्ट है। फैक्ट्री हमने जहाँ लगाई हुई है वहाँ का भी किराया जाता है, रेंट है, या हमने लैंड में सपोज खरीद लिया है, अगर हम रेंट भी नहीं दे रहे तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम फिक्स कॉस्ट की कर चुके हैं, जो हमें कभी वापस नहीं मिलेगी। एक बार पैसा आपने लैंड में लगा दिया, वो आपने खर्च कर दिया, उसके बाद मशीनरी स्टैब्लिश करी हुई है, उस समय फिक्स कॉस्ट लग गई, ना तो आप मशीनरी बेच सकते हो फिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए, ना ही आप लैंड का किराया बोल सकते हो लैंडलॉर्ड को कि कम कर दो, वो तो उतना ही जाएगा, बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं। अगर आपने लैंड परचेस कर लिया है तो वो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो फिक्स कॉस्ट तो हम बिल्कुल नहीं चेंज कर पा रहे हैं, और हमारी फिक्स कॉस्ट सपोज बहुत हाई जा रही है, तो अब हमें सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकती है? फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है हम उनको कम करने की कोशिश करें। क्या है वेरिएबल कॉस्ट? सैलरीज हैं लोगों की। क्या हम रॉ मटेरियल को कम कर सकते हैं? वो भी हमें चाहिए ही है मोर और लेस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद हम क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल लेके आ जाएं तो क्वांटिटी कम हो जाए, तो शायद हम थोड़ा सा वहाँ पे बचा लें कि क्वांटिटी भी, हम शायद एक घटिया क्वांटिटी का रॉ मटेरियल खरीदते थे जिससे हमारा प्रोडक्शन में वैल्यू क्वालिटेटिव नहीं होता था, और अब हम क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो वो शायद हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे दे, सेम क्वांटिटी करके दे दे, थोड़ा लेस रॉ मटेरियल से, तो शायद एक तो हम वहाँ पर कॉस्ट बचा पाएंगे वेरिएबल, दूसरा हम कहाँ बचा पाएंगे, हम सोचेंगे अच्छा फाइनेंस डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, हम कोशिश करते हैं सारा काम जो 5 लोग करते हैं 4 से करवा लें, 1% की सैलरी बचा लें, साल में उसको 10 लाख रुपए देते हैं, या उसका पैकेज 5 लाख का, एटलीस्ट वहाँ पे वो बच जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो ये हो सकता है, या हो सकता है कि फाइनेंस में 40 लोग हों तो 40 की जगह फिर हम सोचेंगे 30 से काम चला लें, 10 लोगों का कॉस्ट बच जाएगा, बहुत बहुत अच्छा एक अमाउंट बच जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जो देन फिर मैनेजमेंट टेक्स द डिसीजन दैट वी वुड नॉट वांट, या वी हैव टू रिड्यूस दी वेरिएबल कॉस्ट। जिसमें सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है वो इसका मतलब ये है कि जब हमारी रिलेटिवली जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हम चेंज उसको कर नहीं सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो हर साल हम फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज कर सकते। हम कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट चेंज जब हम कोई बहुत ह्यूज चीज़ प्लान करेंगे कि ठीक है अब हम यहाँ से पूरा ऑफिस चेंज करके किसी दूसरी जगह पे रिलोकेट करेंगे, बट वो हर साल हो सकता है, वो नहीं हो सकता हर साल। आप हर साल रिलोकेट करते रहो ऑफिस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट लॉन्ग टर्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि सब कुछ चेंज हो सकता है, फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो। हम अपना ऑफिस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, हम वो कर सकते हैं। हम अपना लैंड परचेस करके नया ऑफिस बनाना चाहते हैं, रेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। हम कोई और लैंड नई परचेस करके नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वी आर अज्यूमिंग कि फिक्स कॉस्ट तो हम छेड़ेंगे नहीं, वी विल ओनली बी एबल टू एक्सपीरियंस टू चेंज वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग leverage की? DOL, next is DFL, the degree of financial leverage, DOL is degree of operating leverage. By using fixed operating cost, small change in sales revenue is magnified into the larger change in the operating income. ऑपरेटिंग इनकम को हम बढ़ा सकते हैं सेल्स रेवेन्यू में थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग इज दैट द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग्स बिफोर इनकम एंड टैक्सेस। हमने कुछ भी ऐसा किया, इस फोर्स से कुछ भी ऐसा किया, हमने चेंज किया सेल्स रेवेन्यू में जिससे हमारी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है, तो वो जो चेंज हुआ ऑपरेटिंग इनकम में, चेंज हुआ हमारा ऑपरेटिंग इनकम क्या था, EBIT तक ऑपरेटिंग इनकम था उस स्लाइड में जो मैंने आपको इनकम वाला स्टेटमेंट दिया था। तो चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स विल गिव यू द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन EBIT इज ऑल्सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इन दोनों में से जो भी चीज़ हमारे पास इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन आर नेचर ऑफ बिजनेस, या हमारे पास जो भी एंट्रीज या अवेलेबल डेटा है ऑफ द कंपनी, उनमें से हम कुछ भी चीज़ इन दोनों में से रख के फॉर्मूले में पुट करके वी कैन कैलकुलेट दैट दिस इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वी हैव अर्न्ड दिस ईयर थ्रू द सेल्स।
Now, what is financial leverage? The use of fixed cost sources of finances. Use of fixed cost, जो भी debt है, preference, जो भी हमारे equity shareholders है, preference shareholders, rather than variable cost sources. यानी कि इसमें हम fixed cost को change करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. The variability of uncertainty of the firm's earning per share EPS and the increased probability of insolvency क्या होता है? जब कोई भी कंपनी मतलब बैंकरप्ट अपने आप को बोल देती है तो बोलता है हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं बचा है कुछ भी देने के लिए, रीपे नहीं कर पाएंगे हम अपने, ना तो लोन रीपे कर सकते हैं, ना डिविडेंड दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को, ना शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर सकते हैं. किसी का फोन आए ना, पहले मेनू फोन दे दो, बात करूंगी, बात करूं. अभिषेक, व्हाट इज हैपनिंग बेटा? So variability or uncertainty on EPS you can say, or the earnings per share, जो ये variability होती है या uncertainty की हमें पता ही नहीं. फाइनेंशियल रिस्क हम लोग अभी देख रहे हैं. फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग्स हैं, जो डिविडेंड है, वो रिस्क पर है, इतना वेरिएबल हो रहा है. लास्ट ईयर हमेशा सपोज अर्निंग पर शेयर 2 रुपीज़ पर शेयर था, इस ईयर वो भी नहीं हो रहा या बहुत ज़्यादा हो रहा है. वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है ईपीएस की. तो ये जो है चांसेस है, रिस्क देती है कि कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो सकती है, बिकॉज कंपनी हैज गॉट नो आइडिया वेयर द कंपनी इज गोइंग, वेयर द प्रोडक्शन इज गोइंग, and it can actually arise or lead to the company in a situation where it is at the financial risk. Degree of financial leverage can be calculated okay by using fixed cost financing. जो भी हमने fixed cost जो हमारा finance से हमने लिया हुआ पैसा, जो fixed cost हम दे रहे हैं उस पर, वो small change in the operating income is magnified into larger changes of in our EPS. वहाँ पर क्या था, small change हमने किसमें किया था, सेल्स में, सेल्स रेवेन्यू में हम चेंज कर रहे थे तो ऑपरेटिंग इनकम हमारी ज़्यादा बढ़ रही थी, ऑपरेटिंग इनकम हमारी ज़्यादा बढ़ रही थी. यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज ऑपरेटिंग इनकम में कर रहे हैं, ये हमें ईपीएस में ज़्यादा शेयर का जो पर शेयर का अर्निंग्स है ईपीएस में हमें ज़्यादा इनकम दे रहे हैं. दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट जो इस पर्टिकुलर चीज़ से, यानी कि थोड़ा सा चेंज हम ऑपरेटिंग इनकम में अगर कुछ भी कर रहे हैं, लिवरेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक ऐसा स्मार्ट आइडिया ऑपरेट करने की कोशिश, इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी ऑपरेटिंग इनकम को थोड़ा सा भी नीचे लाएंगे, तो उससे हमारा अर्निंग, थोड़ा ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज, सॉरी, थोड़ा सा भी इनकम हम ऑपरेटिंग इनकम को भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, इससे हमारा अर्निंग्स पर शेयर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा. और इस पर्टिकुलर इफेक्ट को जो मल्टीप्लाई हो रहा है अर्निंग्स पर शेयर, इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम फाइनेंशियल लेवरेज कहेंगे. इसका भी फॉर्मूला है और ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीआईटी करेंगे इसमें हम. उसमें हम ईपीआईटी को ऊपर रखा था हमने और एग्जाम सेल्स को कर रहे थे डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 3 रखते हैं, अज्यूम करते हैं, 1% इंक्रीज इन दी ऑपरेटिंग इनकम, किसी भी तरह से हम लेवरेज को अप्लाई करके अगर अपना 1% का भी इंक्रीज कर पा रहे हैं ऑपरेटिंग इनकम में, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में अगर हम 1% का भी इंक्रीज करते हैं तो अर्निंग्स पर शेयर हमारी फॉर श्योर 3% से इंक्रीज हो जाएंगी. ईपीएस हमारा 3% इंक्रीज हो जाएगा. लिवरेज हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज हम अप्लाई कर रहे हैं तब. एक एबीसी कंपनी का एग्जांपल हम ले लेते हैं. सपोज सेल्स इंक्रीज हुई हैं, सेल्स जो टॉप पर था उस स्लाइड में, सेल्स इंक्रीज हुई है 10% से, ऑपरेटिंग इनकम में क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, या अगर ऑपरेटिंग इनकम हमारी 10% में बढ़ी है तो ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट आएगा. मैं 17 स्लाइड से दोबारा उस पर जाना चाहूँगी. सेल्स यहाँ पे कुछ था पहले टॉप पे, वो अगर हमने इसको सेल्स को हमने 10% से इंक्रीज करा है तो ईबीआईटी पर क्या इफेक्ट आएगा, और अगर हम ईबीआईटी को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं तब, कर पा रहे हैं तब, अर्निंग्स पर शेयर पर क्या इम्पैक्ट आएगा. ये एक इलस्ट्रेशन है. सेल्स हमारा सपोज 1 लाख यूनिट्स था, जो हमने बेचा तो हमें 14 लाख मिला, यानी कि 14 रुपीज़ शायद हमें पर यूनिट का एक कॉस्ट मिल रहा है. कैन बी टॉय, कैन बी वाटर बॉटल, वॉट एवर प्रोडक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग, इट कैन बी कोल्ड ड्रिंक बॉटल, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो हमने इतनी यूनिट्स को हमने इतने में बेचा. वेरिएबल कॉस्ट हमारा 8 लाख रुपए था, फिक्स कॉस्ट हमारा 2.5 लाख था. अब चाहे हम 2.5 लाख सेल रहेगा इन द शॉर्ट रन, चाहे हम 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करें, या इसको अगर हम 2 लाख भी प्रोड्यूस करते हैं यूनिट्स को
तो फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख ही रहता। इंटरेस्ट जो हमने पे किया अपने कैपिटल जो लगाई हुई थी डिबेंचर्स की या इंटरेस्ट वगैरह जो भी हमने बैंक को दिया या किसी भी तरह से, वो हमने 125 का पे किया। टैक्स हमें 34% के रेट पर हमें पे करना पड़ा। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, आप इसको चाहें तो कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। सो कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमारी 1 लाख हो गई। ये एक इलस्ट्रेशन है। इस तरह से आप इस पर्टिकुलर जो ये हमने एजम्पशंस करी हैं इसको इस स्लाइड में हम रख के अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम 10% सेल्स बढ़ाएंगे तो 14 लाख से सेल्स कितनी हो जाएगी, और हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट होगा। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जो था वो सारा फिगर्स आप इस वाले इससे ले लेंगे जो इलस्ट्रेशन है। 125 इंटरेस्ट माइनस करके हमने जो लिया इसको इस फॉर्मूले में जो हमने वैल्यू पुट करा, दिस बिकम्स दिस। ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी कैलकुलेटेड 1.7 और फाइनेंशियल लिवरेज विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस 1.5। कोई भी एबीसी XYZ आपने कंपनी का एग्जांपल ले लेना है और उसके हिसाब से दिखा देना है। दैट पर्टिकुलर चीज़ जो भी हमने इलस्ट्रेशन लिया था इस तरह से इस फॉर्म में हम इसको रख रहे हैं। 1,10,000 यूनिट्स हमने बढ़ा दिया, यानी कि सेल्स हमारी 1 लाख पहले हमने लिया था। 10% अगर हम इंक्रीज इन सेल्स कर रहे हैं तो 1 लाख से हमारी यूनिट 10,000 और बढ़ गई। और 14 लाख जो हमने सेल्स लिया था, 1 लाख यूनिट 14 लाख रुपए की बिकी थी, तो 14 लाख प्लस उसमें हम 10% और रेज कर रहे हैं, 140 हमने ऐड कर दिया, तो 1540 हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ। वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो हम लेस कर रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है लेस करना अमाउंट को, इतने अमाउंट को हम ऊपर वाले में से लेस करने वाले हैं। इज व्हेन वी नीड टू एक्चुअली हैव द अमाउंट deducted out of the above figure, we put that amount in bracket finance terms में। ब्रैकेट में रख रहे हैं तो मतलब हमने लेस किया, यानी कि 15,40,000 में से हमने वेरिएबल कॉस्ट जो लेस किया उसको भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। 880 हो गया। फिक्स कॉस्ट 250, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, जैसे मैंने आपको बताया था। यूनिट्स चाहे हम 1 लाख रखें चाहे हम 2 लाख रखें, बढ़ाएं कितना भी, फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख था पहले ही, वो भी 2.5 लाख ही रहा। वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया विद 10% जो हमने अज्यूम किया था, तो ईबीआईटी हमारा 410 हो गया। हमने अज्यूम क्या किया था पहले, हमारा ईबीआईटी कितना हो रहा था, हम इसको अज्यूम करके चल रहे थे। तो अगर हमने 10% से इंक्रीज किया है इसको, तो हमारा ईबीआईटी हैज बिकम दिस 4,10,000। अब इंटरेस्ट हमारा जो था वो 125 था, वो लेस करके हमारा बिफोर टैक्सेस आ गया। टैक्सेस हमने अज्यूम किया था 34%, जो हमने लेस किया, तो नेट इनकम हमारी इतनी, यानी कि अर्निंग्स पर शेयर जो हमारी आ रही है वो 1.8 है, ठीक है। दिस इज आई एम डन विद दिस टॉपिक, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा जो और है मैं आपको बताऊंगी, वो टॉपिक ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस है जो हम करेंगे। 10% राइज ऑपरेटिंग इनकम करने से हमें अर्निंग्स पर शेयर 15.56 हुआ। This is what this illustration has actually proven. Give me just 2 minutes. I'm going to click your attendance. We are left with 7 minutes. ये जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे अबाउट सैम्पल पेपर, जो भी क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था हम लोग
मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। ये हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो किसी के पास एक्सेस है लाइब्रेरी का कि कोई जाके वहाँ पर ले सकता है सैम्पल पेपर्स किसी भी तरह से, किसी के पास कुछ कोई फ्रेंड हो वहाँ पे, या आई थिंक लाइब्रेरी इज नॉट स्टिल नॉट एक्सेसिबल इन द कॉलेज। वो सैम्पल पेपर्स जो क्वेश्चंस के हमको मिलेंगे लास्ट ईयर्स के, वो वहाँ से मिलेंगे, मैंने मैनेजमेंट से पता किया था, सो दैट यू कैन रेफर देम एंड गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैम विल मैनेज इट आउट बिकॉज अभी जैसे रीअपीयर्स है ना बच्चों की, तो दे विल गो टू कॉलेज और लाइक अभी अक्टूबर में ही, मिड अक्टूबर में। So are you sure that let's college, see. once college will be available, librarian would be there? मैम एक्चुअली आई गेस लाइब्रेरी इज वर्किंग राइट नाउ बिकॉज अभी बुक्स वगैरह कह रहे थे हमको कि तुम ले आना अगर तुम्हें बुक्स चाहिए होंगी, तो लाइक इट वाज सेड टू अस कि बुक्स ले आना, सो मे बी लाइब्रेरी इज वर्किंग। आई विल कंफर्म इट वंस फ्रॉम शिफाली मैम और ठीक है, आप प्लीज शिफाली मैम से पूछ लीजिएगा क्योंकि आई एम स्ट्रगलिंग फॉर इट एंड मैंने मैनेजमेंट से बात जो भी की, शिफाली मैम से तो नहीं कर पाई हूँ मैं, लेकिन डिपार्टमेंट हेड से वैसे मैंने बात की दूसरे डिपार्टमेंट हेड से, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी लाइब्रेरी इज़ नॉट एक्सेसिबल, कॉलेज इज़ ऑलमोस्ट क्लोज्ड, तो वो या तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिलेंगे विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम देयर, हमारे रिलेवेंट सब्जेक्ट के हमें क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएँ वो बहुत डिफिकल्ट है, तो लाइब्रेरी में वो अवेलेबल हैं। अगर किसी एक को भी अवेलेबल होता है आप में से, आरजू इफ यू आर एबल टू मैनेज इट, चाहे आपको 2-3 Yes, साल ma'am. के ही मिल जाएं, तो प्लीज शेयर इट ऑन Yes, ma'am. व्हाट्सएप विथ मी एंड आई विल शेयर इट इन द ग्रुप विद Ma'am, एवरीबॉडी ताकि सबको मिल जाए। either I will ask to the students who have given the financial management exam. I guess electrical or mechanical students have given the exam, like electrical or civil, I guess. लेकिन I'm not बेटा sure, एक so I साल will के ask to पेपर से them. नहीं होगा ना, मतलब जस्ट मैम 1 ईयर। एक्चुअली नहीं मैम, YMCA में फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम आया और हमारा बैच फर्स्ट है, तो लाइक मोस्ट प्रोबेबली हमें या तो एक पेपर या 2 पेपर ही अवेलेबल हो पाएंगे, ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जिन्होंने दिए होंगे बस, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम YMCA में आया हमारे वाईएम सिलेबस सेम में। नहीं, एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है ये पहले इंजीनियर्स को कभी नहीं पढ़ाया गया, किसी और यूनिवर्सिटी में भी नहीं हाँ जी, पढ़ाया गया, हाँ जी, हाँ जी। इट इज नाउ तो बिकम ऑफ ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, जो मतलब इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों ने शायद दिया है या BBA BCA में जिन बच्चों ने दिया होगा ना, तो उनसे शायद अवेलेबल हो जाएगा। आई विल आस्क टू देम वंस। ठीक है, अगर आपके पास मिलता है ना एक या दो भी जो भी अवेलेबल Yes, है, आप प्लीज़ मुझे पर्सनल विंडो में सेंड कर दीजिएगा, तो आई विल जस्ट शेयर इट इन दैट ग्रुप, सेम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चे एडेड है, आपके लिए मुश्किल होगा शायद वहाँ पर सेंड करना बिकॉज यू माइट नॉट बी द एडमिन, बट आई नहीं जस्ट मैम, शेयर इट। आई एम द एडमिन ओवर देयर। तो फिर आप सर्च या तो आप डायरेक्टली शेयर कर दीजिएगा या मुझे दे दीजिएगा, आई जस्ट शेयर सो हाँ दैट जी, हाँ एवरीबॉडी गेट्स इट टू रेफर, जी। यस मैम। बिकॉज इट ओके। इज़ फर्स्ट और सेकेंड टाइम, तो हमें भी बहुत आइडिया नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। प्लस यस, आपको इतना तो पता ही है कि यू आर गोइंग टू गेट 20 शीट्स इनटू 2 बोथ साइडेड, सो यू विल गेट 40 शीट्स फॉर 7 क्वेश्चंस, सो प्रिपेयर योर क्वेश्चंस दैट वे कि आपको एक क्वेश्चन में इतना लिखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 6 शीट्स आपका एवरेज आएगा हर आंसर के लिए, 6 शीट्स यस आपको मैम, फिल वो करना तो है। लाइक वी नो कि हमें कितना लिखना है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स भी तो काफी तो दे ही लिए, हमें पता ही है मैम जिस There हिसाब were से। students who were telling me no that assignments में इतनी शीट्स नहीं कर पाएंगे and all that. अगर assignments में इतनी शीट्स नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे फिर, हाँ जी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि शीट्स जो भी हम कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, ऐसा नहीं होता कि 10 शीट्स आपको कॉपी मिलेगा एंड वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट आवर क्वेश्चंस इन दैट। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम, ऑप्शनल भी रहते हैं क्वेश्चंस उसमें, 7 क्वेश्चंस भी जी आपको मैम, अटेम्प्ट। होता है मैम। मैम कई बार क्या लाइक हाँ जी, ऑप्शनल्स भी ऑप्शन भी होती हैं, बट कई बार ऑप्शंस भी ऐसी होती है कि समझ ही नहीं आती बिल्कुल कि दोनों कौन ही सी नहीं करे आते कौन हैं। सी ना करे। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अभी लाइक लास्ट टाइम भी इकोनॉमिक्स का पेपर आया था, तो बिल्कुल ऐसा पेपर था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या दे दिया उन्होंने पेपर में। बेटा पता है क्या होता है, इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल जो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं ना, ये आप हाँ जी। साइंस बैकग्राउंड लोगों का जो होता है, क्योंकि बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड दी सब्जेक्ट्स अर्लियर, साइंस यस आपने पढ़ा मैम। है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा मैम है, तो चलो वो ये तो फिर भी ठीक है, बायोलॉजी दे रखी है मैम, बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे सब्जेक्ट है, चलो ये तो FM वगैरह तो फिर भी चलो कर लेंगे, बायो बिल्कुल ही हटके सब्जेक्ट और ज्यादा हमारे नहीं, लिए वो मुश्किल हो रहा एक्चुअली इंजीनियर्स को अब ऑलराउंडर बनाने के लिए है। ये सब किया जा रहा है कि आपको हर चीज का नॉलेज थोड़ा बहुत अगर होगा। मैम मैम ये हो रहा है कि हम 7 इंजीनियर्स के अलावा सब कुछ बन रहे हैं, ऐसा मैम लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली 7 सेमेस्टर में बायो कौन पढ़ता है? चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज के टाइम में नीडेड है, आगे आपको मतलब इतना सब आना चाहिए राइट,
बट बायो मतलब सीरियसली वो भी 7 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के बच्चे, जहाँ हमारा भी प्लेसमेंट का टाइम है हम बायो पढ़ रहे हैं। हंसी आती है बिल्कुल ही। तो कॉलेज में कंपनीज अभी आएंगी आप लोगों की, कुछ इन्फॉर्मेशन है? पता नहीं मैम, बात तो अभी करी थी बट लाइक एज सच अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देखो अभी क्या कोविड होता है। कोविड से भी मार्केट तो है डाउन थोड़ा। हाँ जी। चलिए ठीक है, मीटिंग इज अबाउट ओवर इन जस्ट लेस देन अ मिनट, तो आई विल स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक देन विद द फ्रेश क्लास ओनली, ठीक है? तो लिवरेज एंड एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड, और अभी ये यूनिट कंप्लीट होने में तो टाइम लगेगा क्योंकि यूनिट तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय आरजू, बाय Thank बाय you, अक्षर, ma'am. थैंक यू अक्षर, Okay. थैंक यू, बाय।